رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور عظیم اور مذہبی شخصیات کی شان میں گستاخی کرنے کے معاملات میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر شان اقدس اور عظیم مذہبی شخصیات کی شان میں گستاخانہ کلمات کی ادائیگی کے ذریعے مذہبی ہم آہنگی کی فضا خراب کیا جا رہا ہے۔ رضا اکیڈمی اور ممبئی کے مذہبی علماء کرام نے اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے تحفظ ناموس رسالت کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ممبئی کی بلال مسجد میں جمعرات کو تحفظ ناموس رسالت کے لیے ایک فکر انگیز میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ علماء کرام اور دانشوروں نے ناموس رسالت میں گستاخی کے بڑھتے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ میٹنگ میں تحفظ ناموس رسالت کمیٹی کی تشکیل عمل میں لائی گئی۔ کمیٹی میں سوشل میڈیا کے ماہرین اور ماہرین وکلاء کی ٹیم تشکیل دی گئی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرے گی۔ اکیڈمی نے یہ سیل بنایا ہے تاکہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طریقے سے سوشل میڈیا پر گستاخیاں بڑھتی جا رہی ہیں اس پر قانونی چارہ جوئی کرنے کے لیے یہ سیل کا قیام عمل میں آیا۔ اللہ کا ایک بورڈ بنے گا، دانشوروں کا ایک بورڈ بنے گا، علماء کا ایک بورڈ بنے گا اور جس طریقے سے جس چیز کی ضرورت ہوگی وہ تمام چیزیں یہ بورڈ مہیا کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ گستاخان رسول کو کیفیت کردار تک قانونی طور پر پہنچانے کی کوشش کی۔ سوشل میڈیا پر ناموس رسالت میں گستاخی کے بڑھتے واقعات مذہبی و سماجی ہم آہنگی کے لیے خطرناک ہے، اس لیے علماء کرام نے مرکزی حکومت سے تحفظ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے قانون سازی کا مطالبہ کیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک امام جو ہے کم از کم 3000 سے 5 میں چشتی ہندوستانی مسجد کا ہی کر رہا ہے، جہاں ہمارے وہاں تقریباً 8000 کی تعداد میں لوگ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں۔ علماء کرام اور رضا اکیڈمی نے فیصلہ کیا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت کمیٹی غیر مسلم مذہبی عظیم شخصیات کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف بھی قانونی لڑائی لڑنے کی تیاری میں ہے۔ نیوز 18 اردو کے لیے ممبئی سے محی الدین کی رپورٹ۔ ایرانی امامباڑے سے متصل مکانوں اور دکانوں کو بھوپال ضلع انتظامیہ کے ذریعے منہدم کیے جانے کے خلاف ممتاز شیعہ عالم دین مولانا سعید قلب جواد نے مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ سے ملاقات کی۔ مولانا سعید قلب جواد نے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کرنے کے بعد بھوپال ریلوے اسٹیشن کے سامنے واقع قدیم ایرانی امامباڑے کا بھی دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی۔ مولانا قلب جواد کا کہنا ہے کہ بھوپال ایرانی امامباڑہ مشترکہ تہذیب کا امین ہے۔ اس زمین کو ایک ہندو بھائی نے امامباڑے کے لیے دیا تھا اور یہاں پر ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو کارروائی کی گئی ہے وہ غیر قانونی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ سے ذمہ داران کے خلاف کارروائی کیے جانے اور متاثرین کو معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ واضح ہے کہ بھوپال ضلع انتظامیہ کے ذریعے 28 نومبر کو ایرانی امامباڑے پر ناجائز قبضے کا الزام لگاتے ہوئے انہدامی کارروائی کی تھی۔ پورے معاملے پر ہمارے نمائندے مہتاب عالم نے ممتاز شیعہ عالم دین مولانا سعید قلب جواد سے خاص بات چیت کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ بھوپال ایرانی امامباڑے کے آس پاس جو انہدامی کارروائی انتظامیہ کے ذریعے کی گئی اس معاملے کو لے کر ممتاز عالم دین مولانا قلب جواد صاحب نے جو ہے آج سی ایم سے ملاقات کی۔ ان سے جانتے ہیں کہ ملاقات جو سی ایم صاحب سے ہوئی ہے کس معاملے کو کیا طے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں لکھنؤ سے تعلق رکھتا ہوں اور وہاں جو امام جمعہ ہوں وہاں کے جو شاہی مسجد ہے وہاں لکھنؤ کی، اور جو مجلس علماء ہند ہے بہت بڑی آرگنائزیشن شیعہ علماء کی، اس کا میں جنرل سیکریٹری ہوں اور اسلام مسلم مسئلہ بورڈ کا میں فاؤنڈر ممبر بھی ہوں۔ تو اس کے مجھے یہاں خبر ملی کہ یہاں پر جو ہے وہ حکم ہو گیا کہ اس کو سب کو توڑ دیا جائے، پوری آبادی کے مکانات کو، اور اس میں جہاں شیعہ سماج کے لوگ ہیں وہیں بیراگی سماج جو ہندو سماج اس کے لوگ بھی یہاں بڑی بھاری تعداد میں ہیں، اور تو بغیر کسی نوٹس کے یہاں پر ان کو زبانی طور پر کہا گیا تو خالی کر دو ورنہ ہم اس کو توڑ کے گرا دیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو دکانیں تھیں ان کو بھی، اس میں غریب لوگ بیچارے تھے، اب تو روزگار کماتے تھے، ان غریبوں کی دکانیں بھی پوری توڑ دی گئیں اور اس کو بھی بغیر کسی نوٹس کے، آپ کو نوٹس دینا چاہیے لیگل کہ بھائی اب تو اس کے بعد ہوتا ہے، لیکن اگر نوٹس کو توڑنا جو ہے تو بالکل انلیگل کارروائی ہوئی۔ معاملے کو لے کر آپ نے سی ایم سے ملاقات؟ ہم سی ایم صاحب سے ملاقات کی تو وہ تو ان کو تعجب ہوا اور کہا کہ مجھے تو غلط انفارمیشن دی گئی ہے، مجھے تو کہا گیا سب گورنمنٹ کی زمین ہے، مجھ کو تو غلط باتیں بتائی، تو انہیں فوراً بلایا انہوں نے کہ کس نے مجھے غلط انفارمیشن دی ہے، اس کے فوراً جانچ کی جائے، تو انہیں بہت اچھی طرح سے بات کی
اور उससे हमारी पहली मुलाकात हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बहुत संजीदगी से और बहुत ही उन्होंने उस तरह से लिया इस मामले को। उन्होंने कहा कि हम इसको फ़ौरन इसमें गहराई से इसकी जाँच करेंगे कि इससे ज़्यादती कैसे हुई। तो हम तो समझते हैं कुछ ना कुछ इंसाफ के साथ ज़रूर होगा। और ये यहाँ जो ज़मीन है ये कि हिंदू भाई ने दी है, तो हमने उनसे कहा कि इंसानियत का तो बहुत बड़ा तो यहाँ पर मिसाल है कि एक हिंदू भाई ने मुसलमानों को और शिया समाज के रहने वालों को मुफ्त ज़मीन दे दी। और आज भी जब ये लोग जाते हैं कि भाई हमसे कुछ किराया ले लीजिए, तो कहते हैं जब बाप दादा ने हमारा किराया नहीं लिया तो हम आपसे कैसे ले लें, या तो आप मुफ्त रहिए। तो एक तरफ एक हिंदू जो है वो मुफ्त में ज़मीन इतनी बड़ी दे रहा है, और दूसरी तरफ आप उस पर गिरा रहे हैं, उसको लोगों को भगा रहे हैं यहाँ से। ये गरीब बेचारे अगर टूट गए मकान तो सड़क पर आ जाएंगे, ये कोई मकान भी नहीं अपना नहीं बना पाएगा। तो आपने मुतालबा क्या किया? हमारा डिमांड ये है कि ये नाइंसाफ़ी जो हुई है इसको ख़त्म किया जाए, और जिन्हें नाइंसाफ़ी के बुनियाद है जिनको जो लोग जिन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। और इस तरह से जिस तरह से बाकी है सब यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर रह रहे हैं, इसी तरह से इनको यहाँ रहने दिया जाए। और जो दुकानें गलत तोड़ी गई हैं उसको दोबारा बनवाया जाए, मुआवजा दिया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए उनको, और या फिर उनको इस तरह से कि वो दुकान अपनी बना सकें वो, और क्या जो दुकानें तोड़ी गई हैं उनको बनाने का उसका मुआवजा भी दिया जाए। देखते हैं कि जो है यहाँ पे जो इंतजामी कार्रवाई इंतजामिया के जरिए की गई, तो उसको लेकर जो है वज़ीर आला शिवराज सिंह से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जहाँ पर दुकानों की दोबारा तामीर उनके मुआवजा का मुतालबा किया गया, और जिन लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन कार्रवाई की उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर को दिल्ली पुलिस के जरिए शहर तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुजाहिरीन पर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान जामिया मिलिया कैंपस में तलबा के साथ मारपीट की गई थी, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए जामिया मिलिया इस्लामिया इंतजामिया के जरिए साकेत कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी खारिज हो गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब इस मामले में जामिया इंतजामिया अदालत के फैसले को चैलेंज करेगा। पंद्रह दिसंबर 2019 की ये तस्वीर बताती है कि किस तरह CAA की मुखालिफत में एहतजाज के बाद दिल्ली पुलिस ने जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस के अंदर लाइब्रेरी में तलबा पर लाठियां बरसाई थीं। दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के खिलाफ जामिया ने FIR दर्ज कराने की कोशिश की, और जब FIR दर्ज नहीं हुई तो इंतजामिया ने अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए अदालत से अपील की थी कि कार्रवाई करने वाले पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ FIR दर्ज की जाए, लेकिन साकेत कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले से जामिया के तलबा मायूस हैं, और उनका कहना है कि जामिया इंतजामिया को इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए। तो हमारी मांग जामिया प्रशासन से ये है कि वो इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करे। अगर हाई कोर्ट से हमें इंसाफ नहीं मिलता है, छात्रों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो सुप्रीम कोर्ट में इस चीज को चैलेंज करे। साकेत कोर्ट ने अपने फैसले में अर्जी को खारिज करते हुए कहा कि CRPC 197 के तहत इस मामले में पुलिस के आला अफसरान से मंजूरी नहीं ली गई। अदालत ने कहा कि पुलिस मुलाजमीन अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो वहीं जामिया इंतजामिया का कहना है कि ये मामला एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जरिए पहले अदालत में गया था। अब एक मर्तबा फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल से आगे की कार्रवाई के लिए पूछा जाएगा। देखिए, हम जो कोर्ट गए थे वो हमारे EC का डिसीजन था। EC हुई और EC में ये डिसीजन लिया गया कि भाई हमें कोर्ट जाना चाहिए। एक तो अभी ये है कि हमें कॉपी मिली नहीं है, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, और उसको हम सही या गलत नहीं कह सकते। और जो भी कोर्ट का डिसीजन है हम दोबारा से फिर EC हमारी होगी और EC में वो रखा जाएगा, EC जो भी फैसला लेगी। साकेत कोर्ट के जरिए दिए गए फैसले में पुलिस के जरिए पेश की गई एक्शन टेकन रिपोर्ट का भी जिक्र है, जिसमें पुलिस ने कैंपस के अंदर से सिक्योरिटी एहलकारों पर पत्थरबाजी का हवाला दिया है। इसी के साथ कई तरह की लापरवाही और ज्यादती को अदालत ने तस्लीम किया है, लेकिन आला अथॉरिटी से अप्रूवल न लेने के टेक्निकल ग्राउंड पर अर्जी खारिज कर दी। जामिया मिलिया इस्लामिया इस पूरे मामले में जिस तरह से दोबारा से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास जाने की बात कर रहा है, उससे ये सवाल ज़रूर उठता है, क्या जामिया इस मामले में पीछे हट रहा है या फिर वाकई वो इस मामले में कार्रवाई करना चाहता है, यह आप खुद तय कर सकते हैं। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
साकेत कोर्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से वकालत करने वाले एडवोकेट असगर खान ने 197 के टेक्निकल ग्राउंड पर सवाल उठाया है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए असगर खान ने कहा कि वो फैसले से मुतमईन नहीं है, क्योंकि अर्जी मंजूर करने और मुस्तरद करने के लिए टेक्निकल ग्राउंड नहीं होता बल्कि मेरिट बुनियाद होती है। उन्होंने कहा कि इस केस को लेकर रिवीजन में जाना चाहिए। हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने असगर खान से खुसूसी बातचीत की। पिछले साल 15 दिसंबर को पुलिस के जरिए जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में घुसकर तलबा के साथ मारपीट की गई थी और उसके बाद जामिया साकेत कोर्ट गई थी ताकि एफआईआर दर्ज कराई जा सके। इस पूरे मामले में वकील असगर खान एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये जो आप लोग गए थे, मेन बुनियाद क्या थी और इसका ग्राउंड क्या था? देखिए, इस बात की का मुल्क सिर्फ गवाह नहीं है बल्कि पूरी दुनिया गवाह है कि क्या हुआ था, क्या ज़्यादती हुई थी पुलिस के ज़रिए से, और जिसमें कि यहाँ तक कि आर्मी भी के लोग भी शामिल थे, फोर्स के लोग भी शामिल थे, लोकल पुलिस भी शामिल थी, उसके सीनियर ऑफिसर भी शामिल थे, और कुछ ऐसा लगता है कि जैसे गवर्नमेंट भी उसमें बाकायदा तौर पर शामिल थी। और किस कदर ज़्यादती की गई थी, लड़कियों को हाथ ऊपर खड़ा करके लाइन में लगा के एक जलील करने के लिए उनको वहाँ चलाया गया, मार्च कराई गई। और जो वाक़या लाइब्रेरी के अंदर का है वो तो इतना नाजेब है कि वाकई सबको शर्म आ जाती, शायद हमारा सर शर्म से झुक जाता है कि हमारे वो लोग जो हमारे लिए मुहाफिज रखे गए, हमारी हिफाजत के लिए रखे गए थे, उन्होंने पढ़ते हुए मासूम नादान निहत्ते बच्चों पर, लड़कियों पर और लड़कों पर किस तरीके से बेदर्दी से वार किए, उनकी किताबों को फाड़ के फेंका। और उनकी इंटेंशन का इस बात से तमाम कुछ वाज़े हो जाता है कि उन पुलिस ऑफिसर ने घुसने के बाद जो थोड़ा बहुत मारी पीटी की उसमें सीसीटीवी में क्लिप आई और उसमें ये भी मौजूद है कि उन पुलिस ऑफिसर ने उन सीसीटीवी को तोड़ा, वो तोड़ता हुआ भी उसमें आ गया है, उसकी सारी क्लिप हमारे पास मौजूद है। असगर भाई, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, अदालत में भी आप लोग लेकर गए, 156(3) में आप लोग कोर्ट क्यों जाना पड़ा आप लोगों को? क्या आप लोगों ने पुलिस से, अथॉरिटी से रब्ता किया था? देखिए, बहुत आपने बिल्कुल सही सवाल किया। पुलिस से हमें पहले पुलिस से ही रब्ता करना चाहिए था। जब वाक़या हुआ तो हम, कोई भी वारदात होती है पुलिस से रब्ता किया था। इसमें एक बार नहीं, कम से कम 50 बार यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर साहब ने, यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर साहिबा ने, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब ने, तमाम लोगों ने बार बार ज़ाती तौर पर टेलीफोनिकली भी रब्ता किया। नॉट ओनली दिस, रिपीटेडली कंप्लेंट्स लिख के दी, राइट फ्रॉम द SHO टू द कमिश्नर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबको, SHO को, ACP को, DCP को, कमिश्नर ऑफ पुलिस को, गवर्नर को, गवर्नमेंट में होम मिनिस्ट्री को, ह्यूमन राइट को, सबको कंप्लेंट दी गई। वो सारी एनेक्स की हैं हमने उस कंप्लेंट में। अब देखिए, अगर आपका सवाल ये हो कि साहब फिर उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, जब आपने कहा कि क्या आपने कहा था, होना तो इसमें ये चाहिए था कि कोर्ट को सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन एक बात बताइए, 156(3) में आप लोग गए, इसमें 197 कैसे आया? और आपका जो ऑर्डर है, जो कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पर FIR नहीं हो सकती। देखिए, कोर्ट की वो तो एक बात सही है और कानूनी बात है कि 197 में हमें उसमें सैंक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन ये कि सैंक्शन हम किससे लेते? बेटे पे केस चलवाने के लिए बाप से सैंक्शन लेंगे तो कौन हमें सैंक्शन देगा? अभी तक जामिया अथॉरिटी ने क्या आपको फर्दर आगे जाने के लिए, रिवीजन के लिए जाने के लिए कोई इंडिकेशन दिया है? हमारी आज कल में मीटिंग है, उसके बाद ये फैसला होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मामले में अब जामिया मिलिया इस्लामिया रिवीजन में जा सकता है, ये असगर खान एडवोकेट साहब ने साफ कर दिया है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। नाजरीन, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कि असातिज़ा ने आज कोलकाता में एहतजाजी रैली निकाली। मदरसा असातिज़ा ने माली ताउन के बगैर रियासत के 235 मदारिस को मंजूरी देने के हुकूमत के फैसले को अफसोसनाक बताते हुए कहा कि हम असातिज़ा हैं, तुलबा को तालीम देते हैं, लेकिन हुकूमत हमें न तो अहमियत देती है और ना ही हमारे मसाइल पर तवज्जो दिया जाता है। असातिज़ा ने एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। उनके मुताबिक हुकूमत के ताउन देने का ऐलान सियासी है। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर ग़यासुद्दीन मुल्ला ने असातिज़ा की तनख्वाह के मुतालबे को जल्द तस्लीम करने का यकीन दिलाया है, जबकि वज़ीर आला ममता बनर्जी ने रियासत के 10,000 मदारिस को मंजूरी देने का ऐलान किया था, लेकिन सिर्फ 235 मदारिस को ही बगैर किसी सरकारी ताउन के मंजूरी हासिल हुई है। हम लोग को डिमांड जो है 235 मदरसा गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किया है,
अभी तक 10 साल तक हम लोग को तनख्वाह नहीं दिया, टीचर लोग को कोई महीने तनख्वाह नहीं मिलता और बच्चों लोग को कोई मिड डे मील नहीं मिलता, उन लोग को पोशाक भी नहीं मिलता। एक तो स्कूल चलाने के लिए जो परिकाठा जो है वो गवर्नमेंट नहीं देता हम लोग को, तो हम लोग इसलिए बहुत बार उन लोग को रिक्वेस्ट किया है, एप्लीकेशन किया है, वो लोग बोला है देंगे। हम लोग को नवान ने बोला के ले गया, बोला हम लोग को फाइल फाइनेंस से चला गया, लेकिन पूरा झूठ है। अभी बोलता हम लोग नहीं दे पाएगा, हम लोग नहीं देगा। इसलिए हम लोग तनख्वाह के लिए बचने के लिए 235 मदरसे से बचाने के लिए कम से कम 45,000 स्टूडेंट पढ़ता है, उसको बचाने के लिए हम लोग रास्ता में। भोपाल में मुतनाज़ा ज़मीन पर कर्फ्यू का निफाज करके एक फरीक को तामीर की इजाज़त दिए जाने के खिलाफ समाजी तंजीमों के एक वक्फ ने राजभवन जाकर गवर्नर आनंदीबेन पटेल को मेमोरेंडम पेश किया। वफ्द का कहना है कि मुतनाज़ा ज़मीन पर कर्फ्यू का निफाज करके ज़िला इंतज़ामिया की जिस तरह से कार्रवाई की थी वो न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि इखलाकियात के भी खिलाफ है। मुस्लिम समाज के वफ्द ने गवर्नर को मेमोरेंडम पेश करते हुए जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। साथ ही कल जुम्मे के मौके पर सभी मुसल्लियान से वक्फ अराजी को लेकर अदालतों में चलने वाले मुकदमे में कामयाबी के लिए दुआ की अपील की है। राजभवन आकर कब्रिस्तान काले पीर जो कि कबाड़ खाने में है और यहाँ पर भोपाल में पिछले दिनों कर्फ्यू लगाकर इस कब्रिस्तान को भूमाफिया के हवाले कर दिया गया था, उस सिलसिले में एक ज्ञापन राजभवन में राज्यपाल महोदया को दिया है। इस पर ये डिमांड की गई है कि जो भी इसमें कल्परेट ऑफिसर हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए और जिसने भी इस कब्रिस्तान को भूमाफिया के हवाले करा है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। गैर कानूनी होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के दौरान म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अमले की टीम पर किए गए हमले के खिलाफ नांदेड़ कॉरपोरेशन मुलाजमीन ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। कॉरपोरेशन दफ्तर के सामने किए गए एहतजाजी मुजाहिरे में कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ महकमों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। अक़लियती तंजीमों और समाज को दरपेश मसाइल के वजूहात और उसके हल के मकसद के लिए आकुला में 7 जनवरी को एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है। विदर्भ सतह के इस सेमिनार में पूरे महाराष्ट्र से मुख्तलिफ NGOs की सरकर्दा शख्सियात शामिल हो रही हैं। महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम के बैनर तले मुनक़िद होने वाले इस सेमिनार में मुसलमानों को दरपेश चैलेंज और उसे हुकूमती सतह पर किस तरह हल किया जा सकता है उस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मालूमात न होने की वजह से अक़लियती तबके कई सरकारी स्कीमों से महरूम हो जाता है। ताहम अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों की मालूमात फराहम करने के लिए MMNF यानी महाराष्ट्र माइनॉरिटी NGO फोरम ने अहम पहल की है। दरअसल फोरम की जानिब से रियासत भर में MDC सेंटर खोले जा रहे हैं। अमरावती में भी फोरम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 MDC सेंटर का इफ्तिताह किया गया। जमीयत उलमाए हिंद के जिला सदर हाफिज नज़म अंसारी के हाथों इन तमाम सेंटर्स का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर शहर की मिली, समाजी और सियासी शख्सियात मौजूद रहीं। मुस्लिम ख़वातीन कानून के शोबे में आला से आला मकाम पर फाइज हो सकती है। बेंगलुरु की डॉक्टर नजीबुन्निसा इसकी एक उम्दा मिसाल है। देखिए रिपोर्ट। बंगलुरु में भारत एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलने वाले लॉ कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर नजीबुन्निसा दीगर मुस्लिम ख़वातीन के लिए मिसाल बनी हुई हैं। घरेलू जिम्मेदारियों को अदा करते हुए कानून के शोबे में एक आला ओहदे पर फाइज हैं। नजीबुन्निसा ने अपनी सलाहियतों से साबित किया है कि मुसलमान सिर्फ मुस्लिम तालीमी इदारों में ही नहीं बल्कि बिरादराने वतन के इदारों में भी आला से आला मुकाम पर फाइज हो सकते हैं। बहुत सारे स्कॉलरशिप है, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं, वो आगे बढ़े तो उन लोगों को हर चीज का इल्म आ जाएगा, पहले वो इल्म को हासिल कर। नजीबुन्निसा ने गुज़िश्ता साल गुलबर्गा यूनिवर्सिटी से कानून माहौलियात में PhD मुकम्मल की है। उनका कहना है कि कानून की कम से कम जानकारी रखना हर शख्स के लिए जरूरी है। इससे हुकूक और जिम्मेदारियों को समझने में आसानी होगी। हमारा जो भी हक हमारे से छीना गया है वो हक को हम हासिल कर सकते हैं। नजीबुन्निसा कहती है कि मुस्लिम ख़वातीन शादी के बाद भी अपनी तालीम के सिलसिले को जारी रखें। इससे बच्चों की तालीम व तरबियत के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट।
हिंदुस्तानी मईशत के लिए आत्मनिर्भर भारत की अपील बेहद ही अहम वक्त पर किया गया है। ये अपील हिंदुस्तानियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया जा रहा है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी के जरिए पेश करदा स्वाभिमान भारत एक ऐसी ही पहल है जो हम आपको मुल्क भर से ऐसी हिंदुस्तानियों की कहानियां दिखाएंगे जो सरकार की मदद के बगैर मसाइल हल कर रहे हैं। इख्तराई सलाहियतों और हुसूलियाबियों की ऐसी कहानियां जो बताती है कि हम एक कौम की शक्ल में कितने मजबूत है। ये वीडियो नेटिक्स की कहानी है जो दुनिया भर के वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम को मजीद मौसर बनाने के लिए जदीद घरेलू टेक्नोलॉजी मुहैया कराती है। डॉक्टर टिंकू आचार्य एक शोधकर्ता, आविष्कारक, प्रौद्योगिकीविद, शिक्षक और उद्यमी हैं। उन्होंने कोलकाता में वीडियो नेटिक्स की शुरुआत की, जो वीडियो सर्वेलेंस सिस्टम्स के लिए जबरदस्त तकनीक बनाता है। When I was in USA, so I was always wondering that how can we build Indian intellectual property to bring India in the forefront of technology. That time I realized that video is going to be another data type. With that goal, I wanted to create a video computing platform. ये इंटेलिजेंट वीडियो सर्वेलेंस के लिए एज डिवाइसेस से लेकर क्लाउड होस्टेड सेवाएं मुहैया कराता है। एक छोटे कंप्यूटेशनल और मेमोरी फुटप्रिंट्स के साथ ग्रीन कंप्यूटिंग के सिद्धांत पर आधारित ये ओवरऑल परफॉर्मेंस और विश्वसनीयता में सुधार करते हुए परिचालन और पूंजीगत लागत को कम करता है। पूरी तरह से भारत में विकसित वीडियो नेटिक्स की तकनीक ने पूरे भारत में 100 से अधिक शहरों, 80 हवाई अड्डों और 100 बड़े उद्यमों को सुरक्षित किया है। अब इसे विदेश में भी ले जाया जा रहा है। डॉक्टर टिंकू आचार्य की वीडियो नेटिक्स भारत को ग्लोबल टेक इनोवेशन के मामले में सबसे आगे लाने का प्रयास कर रही है। खास बात इंडिया में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर।